Good morning, children. Today in EVS, we are going to start a new chapter, lesson 14 pollution. The word pollution, children, as you hear, what comes in your mind? Dirt, isn't it? Pollution means gandagi. In many sense, you can say, बहुत different types के pollution होते हैं. River pollutions होते हैं, water pollutions होते हैं, air pollutions होते हैं, land pollutions होते हैं. There are many different kinds of pollutions, children. So in this particular chapter, we are going to study about what is the environment. Environment क्या होता है? What is pollution and what are its types? Then what are the main causes and effects of pollution? Then how can we control pollution? जितने भी कॉजेज होते हैं ना पोल्यूशन के, तो उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दैट ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवरी वन शुड नो अबाउट इट चिल्ड्रन, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. And will let to know many new things which you are still unaware about it. So let's start, children, with the environment. What is environment? The environment includes all living and non-living things surrounding us. So environment क्या है? वो सारे living things भी और non-living things भी जो हमारे surroundings में present होते हैं. Okay? Now, when we talk about our environment, we mean everything in the world which affects our lives. But when we talk about the environment, we mean everything in the world that surrounds and affects all life on the earth, including the air, food chains, water cycle, plants, animals, and humans. So our environment का मतलब क्या होता है? जो पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट कर रही है. Okay, affecting everything in the world. And as we talk about the environment, what does it means? The world that surrounds and affects all life on the earth, like the air, food chains, water cycle, plants, animals, and even the humans, children. People and the environment affect each other. A change in the environmental conditions affect us in the form of sweating, शिवरिंग, जो कि आजकल चल रहा है. अभी का टेम्परेचर जो है, जो आउटसाइड वॉट एवर द एनवायरमेंट इज, इन दैट एनवायरमेंट यू कैन से वी पीपल आर शिवरिंग विथ कोल्ड, a headache, a runny nose, etc. Similarly, our activities also affect the environment. हमारी जो एक्टिविटी, ये नहीं कि environment ही हमें affect करता है. It's not that only, children. Even our humans' activity also affect our environment. Like when we eat something, we throw the waste and make a noise, then burst crackers, drive vehicles, etc. The environment gets affected. जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना, जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ है, उनके वजह से भी एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होता है. लाइक जब हम कुछ पैकेट्स, ईटेबल्स जो कहते हैं ना, आप लोग उसे कैरी करते हो मार्केट से और लाते हो और फिनिश हो गए, उसके बाद जो पैकेट्स थी, प्लास्टिक्स, जनरली यू कैन फाइंड देम इन प्लास्टिक्स और कैंस और बॉटल्स और बॉक्सेस. तो उसके बाद जो वेस्ट हो जाती है उसे हम लोग क्या करते हैं? वी थ्रो अवे. सो उससे हम क्या कर रहे हैं? लैंड पोल्यूशन. अगर आप उसे बर्न कर दोगे, प्लास्टिक को बर्न करोगे, तो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, मीन्स एयर पोल्यूशन होता है. सो लाइक दैट ओनली चिल्ड्रन, जब हम नॉइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न्स ब्लो करते हैं, तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है. क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं, देन अगेन एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड. So these all are the reasons, or you can say the ways how our environment is affected. See, a child, it's given very clearly, explained through this picture, children. The child, after having the banana, he threw its peel on the फ्लोर और लैंड. तो वो एक एनवायरनमेंट हुआ, अफेक्ट हुआ, आपकी पोल्यूशन फैल रही है. देन वाइल स्नीजिंग और कफिंग ऑल्सो, नाउ अट इज ड्यूरिंग कोरोना पीरियड हमें कहा जाता है ना, वी शुड यूज़ मास्क. वाई? कि जब आप स्नीज करोगे, कफिंग करोगे, तो आपके माउथ से कुछ जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस हैं, वो बाहर एयर में मिक्स होती हैं, and it will travel very easily to some other persons. Okay, now bursting crackers, then the smokes from the vehicles, इन सब कारण से हमारा जो environment है ना, वो pollute हो जाता है. Okay, do you know the meaning of the word pollute, children? Pollute mean pollution. Okay, so
पोल्यूशन इज एन अनवांटेड चेंज इन द एनवायरमेंट. पोल्यूशन जो है वो अनवांटेड चेंज है हमारे एनवायरमेंट में, विच कैन कॉज हार्म टू पीपल एंड अदर लिविंग थिंग्स. Pollution is in fact caused by us when we add harmful substances to the environment. So pollution जो है ना children, वो no doubt we human beings only generate it and create it, you can say. और ये अच्छे से हमें पता है कि these all things are harmful for us, वो हमारे लिए harmful है, but still we don't care about it and we generate and we create pollution. Now, these harmful substances are called as pollutants. Okay? The main pollutants in the environment are waste material and noise. Besides this, pollution is also caused by the careless use of chemicals, insecticides, petroleum, etc. See, there are so many reasons. कितने तरह से हम अपने environment को pollute कर सकते हैं क्या बच्चों? In fact, we are doing it. Okay, now there are 4 types of pollution: soil pollution, air pollution, water pollution and noise pollution. Clear? Now soil pollution, we'll study first about the soil pollution. Now the solid waste material that we throw in open areas, they make the land or soil polluted. Now these waste include domestic garbage, industrial trash and even the agricultural waste. आपने सुना होगा ना कि इन पंजाब एंड हरियाणा, हिमाचल, वो स्पेशली इन हरियाणा एंड पंजाब मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव हर्ड कि लोग आफ्टर हार्वेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो वेस्ट हो गया ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट उसे ही कहा जाता है, पराली जला दी गई थी. इट वॉज फ्लैशिंग इन द न्यूज़ चैनल्स, बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट में भी लोग थे कि उससे क्या हो रहा है कि दिल्ली इज़ बीइंग पोल्यूटेड ड्यू टू दैट. एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है ना, पराली जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसे जब बर्न करते हैं तो जो स्मोक अराइज होती है, उससे हमारी दिल्ली जो थी वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में आ गई थी. सो दोज आर एग्रीकल्चरल वेस्ट. इंडस्ट्रियल ट्रैश होते हैं, इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकलते हैं एंड इवन देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनका उन्हें काम नहीं है, दे थ्रो इट आउट थ्रू द ड्रेन्स. जहाँ ओपन ड्रेन्स है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, केमिकल्स निकल जाती हैं, तो आसपास के लोग जो वहाँ रहते हैं ना, दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय दोज केमिकल्स. अगर लीकेज हो गया बाय चांस किसी गैस की, तो उससे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड पीपल समटाइम्स डाई ऑल्सो. Now, disposing of these waste materials properly is necessary because in open waste many insects like houseflies and mosquitoes thrive. Many diseases causing germs also thrive in them. If waste is left in the open, it starts to rot and spread foul smell and diseases in the area. सो जो भी गार्बेजेस होते हैं ना, अगर हम घर के बाहर एक पर्टिकुलर डस्टबिन रख दें, उसके अंदर डालें, एंड द म्यूनिसिपैलिटीज पीपल जो रहते हैं ना, वर्कर्स जो रहते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले, वो आते हैं एंड दे कलेक्ट इट एंड दे थ्रो इट आउटर ऑफ आवर सिटी. ऐसे जगह में वो ले जाके उससे डंप करते हैं जहाँ से हमारी जो लैंड है या फिर हमारी एयर है पोल्यूट न हो पाए. सो वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेजेस हियर एंड देयर. अगर घर के आसपास आप कहीं ऐसे जाके गार्बेज को डंप करके आ रहे हैं, आपके घर के डोमेस्टिक वेस्ट को, तो वो क्या, वो रॉटन होगा. रॉटन होने की वजह से उसमें से स्मेल्स आएंगे, isn't it? And even mosquitoes, house flies जो रहते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीजेज है ना, दे आर बीइंग ब्रॉट अप, वो उसी में बॉर्न होते हैं. सो वी शुड try to avoid it. There are 2 kinds of solid waste, children. Some waste like fallen leaves, peels of fruits and vegetables, paper and animal waste generally rot and mix with the soil after some time. These waste are called biodegradable waste. So इन्हें biodegradable waste कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो कुछ दिन बाद क्या होते हैं ना, सॉइल में रॉट होके मिक्स हो जाते हैं एंड दे बिकम manures also, children. So on the other hand, waste include especially the plastic, metals, glass, chemicals, rubber, etc. They do not rot. So जो rot होके mix हो जाते हैं ना, biodegradable जिन्हें हम कहते हैं, that is good कि वो land को fertile भी बना दिए और pollution भी नहीं फैला. But जब इन टाइप की चीज़ें
लाइक प्लास्टिक, ग्लासेस, ये सब जब यूज़ करते हैं ना, रबर, केमिकल्स जो होता है, कुछ मेटल्स होते हैं पर्टिकुलरली जो रॉट नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, दे स्टे इन द सॉइल परमानेंटली एंड पोल्यूटेड. नाउ दीज वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं क्योंकि ये मिक्स नहीं होते हैं और वो बायोकेमिकल नहीं बन पाते. दे स्टे एज इट इज. इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स, यू कैन से चिल्ड्रन, टू डिकम्पोज. ये सारी चीज़ें ना, मेटल्स तो हार्डली दे डिकम्पोज चिल्ड्रन, और प्लास्टिक का भी वही कंडीशन है, वो भी जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पाते. सो दे क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज, यू कैन से, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. नाउ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट को हमें किस तरह से डिकम्पोज करना चाहिए जिससे कि कोई हार्म न पहुंच पाए. There are various methods in which we can dispose of solid waste. सबसे पहला है, ऑप्शन है burning. Many times waste is dried and burned in the open. It is wrong practice children. कभी भी हमें उसे, अगर आपको बर्न भी करना है, जलाना भी है, तो ओपन में नहीं करना चाहिए. Because the smoke caused by the burning of waste pollutes the air. आप ओपन में कर दिए, बहुत लोग एलर्जिक होते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रीदिंग में, तो वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स उसके अंदर जब बर्न होता है ना, तो एक एसिड, एक केमिकल निकलता है उसके अंदर से, विच इज़ वेरी मच हार्मफुल. सो वी शुड नेवर burn the waste in an open area, any solid waste children. Now next comes composting. It is the best method of disposing of biodegradable waste. In it, animal and vegetable waste like dung, cow dung जो होता है, peels of fruits and vegetables and dry leaves are put in deep pits and then covered with soil. After some time, these waste decompose and convert into useful manure. मैंने कहा ना, like cow dungs जो होते हैं ना, जिन्हें हम हिंदी में गोबर कहते हैं, वो जो होते हैं, या फिर आपके वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, फ्रूट्स के पील्स होते हैं, इन्हें हमें क्या करना चाहिए. अगर आप इस चीज़ को ना, डिस्कम्पोजर जो है ना, ये आप अपने घर पे भी क्रिएट कर सकते हो. कैसे, ओनली अ लैंड शुड बी दे, वैकेंट लैंड शुड बी दे. घर के कॉर्नर का जो लैंड है ना, आपका जो वैकेंट पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको डिग करो, बड़ा सा उसमें एक होल बनाओ, गड्ढा बनाओ, और दिन भर के जितने भी वेस्ट है ना, सब आप उसी में डाल दो और उसको ऊपर से आप कवर कर दो. एंड आप स्लोली यू कैन से, जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसके ऊपर फिर से आप क्या करोगे, उस कवर को रिमूव करके उस पर मड डाल दो. मड डाल के छोड़ दो उस एरिया को. आफ्टर 2 or 3 months यू कैन फाइंड चिल्ड्रेन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ आपने डंप किया था आपके वेस्ट को, काउ डंग या फिर किचन के जो वेस्ट होते हैं ना, उनको जो आपने डंप करके ऊपर से कवर किया था ना, दैट पर्टिकुलर लैंड बिकम्स मच फर्टाइल इन कंपेरिजन टू अदर लैंड. वाई? बिकॉज दोज जो डस्ट और वेस्ट आपने डाला था ना, वो डिकम्पोज हो गए, सॉइल के साथ मिक्स हो गए, एंड इट हैज़ बिकम मैन्योर. स्पेशली द फार्मर्स चिल्ड्रन, वो भी ऐसा करते हैं, मैन्योर्स को क्रिएट करते हैं. सो द पीपल हु ऑल आर लिविंग इन सिटीज़, दे डोंट नो अबाउट इट. इट्स अ गुड अवेयरनेस फॉर देम कि अगर हम हर कोई अपने घर में अगर वैसा कोई स्पेस वैकेंट है, या आपके लोकेलिटी में कोई एक स्पेस वैसा वैकेंट है, तो आप अपने लोकेलिटी को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. Make everyone, request, I'll say request every person to throw all the kitchen waste, then cow dung in that particular place only. उसी होल में सारे लोग डालिए और उसके बाद उसे कवर कर दिया जाए. And when it fills, cover it with mud. And after few months you can say, जब आप वहाँ पर कुछ प्लांट करोगे, ये एक अच्छी सी ट्री लगा दो, so that आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, and it will be helpful in clearing your pollution also, isn't it? Now recycling children. This method is used to dispose of non-biodegradable waste. These waste are sent to recycling units. There they are melted and used to make new products. So recycling क्या होता है? जो ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने जो कहा ना अभी, जैसे प्लास्टिक्स हुए, कुछ मेटल्स होते जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो उन्हें रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में आपको सेंड कर देना चाहिए. यू कैन सी ना, आपके घर में यू माइट हैव हर्ड मेनी टाइम्स the people comes, loha tina like that they say na, they come to take all the waste material from your home.
नो, नाउ व्हाट डू दे डू चिल्ड्रन, वो क्या करते हैं, वो कंपनीज में नहीं सेंड करते, देयर इज अ शॉप मेड फॉर देम, और वो शॉपकीपर जो है ना, जो उनसे ये सब वेस्ट परचेज करता है एंड दे पे समथिंग, तो वो जो शॉपकीपर है वो बड़े बड़े कंपनीज, जो रिसाइकलिंग कंपनीज होते हैं ना, दे सेंड देयर पार्टिकल्स एंड देयर रिमेन्स ओवर देयर, जो उनके पास मटेरियल्स रहते हैं ना, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक और वॉट एवर, तो वो उन्हें उन्हें सेल कर देते हैं, एंड दोज कंपनीज जो हैं वो क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर चीज़ों से उन्हें रिसाइकल करके दे जनरेट समथिंग न्यू। लाइक प्लास्टिक्स होते हैं ना, आपके रोड साइड में भी आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक वेस्ट है उन्हें भी कलेक्ट करने के लिए सम चिल्ड्रन, समटाइम्स सम लेडीज और मेंस, दे मूव विथ अ सैक, और वो भी जाके उसी पर्टिकुलर शॉप में उसे सेल करते। तो अब आप बोलोगे कि वो कचड़े से क्या होता है, तो कचड़े से भी कुछ जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज रिसाइकलिंग कंपनीज। डू यू नो, प्लास्टिक्स जो हम लोग पॉलीथीन बैग्स वेस्ट करते हैं ना, उससे एक रोड भी बन सकता है, and which is very much useful, and it remains for years and years, children. Okay, so next comes landfills. अब landfills क्या होता है? Now landfills are used to dispose of very large amount of waste. First, a very large pits is dig in the ground away from a city or village. Then waste from different areas of the city or village are collected and dumped in this pit. Finally, a thick layer of soil is spread over it and pressed so that all the waste is buried under it. दैट्स वाई आई सेड ना कि जो आपके डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं ना, उन्हें आपको घर के बाहर इधर उधर स्कैटर करके नहीं फेंकना चाहिए, पोल्यूशन जनरेट होता है। इन फैक्ट वी शुड कीप इट इन यू कैन से डस्टबिन्स बना के आप घर पे रखिए, जहाँ पर जिसमें आप सब कुछ कवर करके रखेंगे, एंड व्हेन दोज पीपल कम्स ना फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी एरियाज, यू जस्ट गिव देम, और वो उन सबको कलेक्ट करके ले जाते हैं जहाँ आउटर स्पेस, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था ना, जो आपके शहर से बाहर हटके होगा, जहाँ से आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। इवन दे डू द सेम चिल्ड्रन, यू कैन सी इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली इन दिस पिक्चर, थ्रू दिस पिक्चर चिल्ड्रन। एक बड़ा सा वो गड्ढा बनाते हैं, बहुत डीप रहता है, और उसी में सारा गार्बेज जो है ना वो उसे डंप करते जाते हैं, एंड व्हेन इट फिल्स, जब जो वो गड्ढा है ना वो फिल हो जाता है, तो उसे मड से फिर से कवर कर दिया जाता है, सो दैट इट शुड नॉट जनरेट एनी पोल्यूशन। एंड स्लोली जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्योर का रूप ले लेते हैं। क्लियर? थैंक यू।